भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सेंचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सेंचो। रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सेंचो, रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो। मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा। चम चम मी बरसा, चम चम मी बरसा, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चिखा, उस रूह का मजा चिखा, उस रूह का मजा चिखा, उस रूह का मजा चिखा। चम चम मी बरसा, चम चम मी बरसा, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। आमीन। God bless you all. बहुत बहुत शुक्रिया पादरी साहब। और बेशक हम सब इस चीज़ के मुतमन्नी हैं कि हमारा प्यारा यस्सु अपने अबर का रूह हम पर भेजे। मेरी दरख्वास्त है पास्टर खालिद, आई गेस अगर आप अपनी स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए, क्योंकि बेशक ये अजीम बात है जो आपने लिखी है, यस्सु मेरी ज़िंदगी, लेकिन बेहतर होगा कि आप प्लीज़ अपनी स्क्रीन को शेयर करना बंद कर दीजिए। शुक्रिया। हम हमदोसना में आगे बढ़ेंगे। जी बहन। ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल, आप वर्शिप ज़रूर कीजिए। और आई गेस कि पहले ब्रदर असगर ने यहाँ पे लिखा था चैट में, तो पहले हम ब्रदर असगर को मौका देंगे। तो प्लीज़ ब्रदर असगर इमैनुअल, आप और आपकी फैमिली हमको वेलकम कहते हैं, और आप हमदोसना में आगे बढ़िए। हेलो जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। हम एक ज़बूर गाएंगे। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯहोਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੁਣਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯहोवा ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਹਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਰਿਹਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਰਿਹਾਈ। शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादा गुजारा, शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब पुकारा,
सुने ना रब रोना मेरा, जाने सब पुकारा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਲੜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਲੜਾਈ। ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਵੇ। ਮੁੰਡ ਕਦੀਮੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁੰਡ ਕਦੀਮੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਨਾ ਡਰਦੇ ہیں خدا تو نہ لکھی تبدیلی۔ ਉਹ ਨਾ ਡਰਦੇ ہیں خدا تو نہ لکھی تبدیلی۔ اپنے سجنا مترا دے نال ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ। اپنے سجنا مترا دے نال ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ۔ قول قرار بتھیرے کیتے پر نہ پوری پائی۔ قول قرار بتھیرے کیتے پر نہ پوری پائی۔ مکھن نالو منہ ہے کولا دل وچ بھری لڑائی۔ مکھن نالو منہ ہے کولا دل وچ بھری لڑائی۔ تیل تو ود کے نرم ملائم دے منہ دیا باتاں۔ تیل تو ود کے نرم ملائم دے منہ دیا باتاں۔ پر ننگی تلوار دے وانگر تیز نے دیا بھاتاں۔ پر ننگی تلوار دے وانگر تیز نے دیا بھاتاں۔ سنتے میں یہوہ کے دیواں گا دہائی۔ اپنا بھار یہوہ تے سٹ آپے او سنبھالے۔ اپنا بھار یہوہ تے سٹ آپے او سنبھالے۔ سچے نو ہمیشہ تیکر کدی نہ تلکن دے۔ سچے نو ہمیشہ تیکر کدی نہ تلکن دے۔ منتے میں یہوہ کے دیواں گا دہائی۔ آمین۔ آمین بردر عسکری مینول اینڈ فیملی، بہت بابرکت آپ نے حمد و ثنا گائی۔ بے شک ہم اپنا بھار یہوہ پر ہی ڈالتے ہیں، وہی ہمارا بھار اٹھاتا ہے اور ہمیں بہت سی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم حمد و ثنا میں آگے بڑھیں گے اور سسٹر شمیم رضا، سسٹر شمیم آپ آن لائن ہیں تو پلیز اپنا مائک انمیوٹ، جی بالکل، تو اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور خداوند کے حمد و ثنا میں آگے بڑھیے۔ جی سسٹر جی، تھینک یو سو مچ۔ مسیح میں سب کو سلام، گاڈ بلیس یو آل۔ روح پاک چٹاناں نوں ہلا دیندا اے، دریاواں دے رخ پرتا دیندا اے۔ روح پاک چٹاناں نوں ہلا دیندا اے، دریاواں دے رخ پرتا دیندا اے۔ ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا۔ پاک روح دا نہ سامنا کوئی کر سکیا، اے دے نال نہ اج تک کوئی لڑ سکیا۔ پاک روح دا نہ سامنا کوئی کر سکیا، اے دے نال نہ اج تک کوئی لڑ سکیا۔
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਠਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਪਰਤਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਠਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਪਰਤਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਪਰਤਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਪਾਕ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਪਰਤਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੱਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਸੂੜ ਕੇ ਕਰ ਤਬਾਹ ਦੇਂਦਾ ਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਪਰਤਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਸਾੜ ਸੂੜ ਕੇ ਕਰ ਤਬਾਹ ਦੇਂਦਾ ਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਪਰਤਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਪਰਤਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਆਮੀਨ praise the Lord God bless you all आमीन आमीन बहुत शुक्रिया सिस्टर शमीम रज़ा खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत सी बरकतें दे बेशक पाक रूह तमाम रुकावटें दूर करता है दरियाओं के रुख बदल देता है और हमारे दुश्मन के मुकाबले में हमें फतह बख्शता है अब हम दुसना में आगे बढ़ेंगे और कोई भी बहन और भाई अगर गीत गाना चाहते हो खुदावंद ने उनके दिल में कोई गीत रखा हो कोई ज़बूर गाना चाहते हो तो प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और हम दुसना में हमारी रहनुमाई कीजिए अगर कोई बहन और भाई कोई गीत गाना चाहते हैं वरना हम लोग इबादत को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त अब वक्त हो चला है कि खुदावंद के खादिम पास्टर जॉन अशरफ खुदावंद का कलाम हमें सुनाएं और खुदावंद के खादिम के लिए मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर खालिद जावेद से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए कि पादरी जॉन अशरफ जो भी कलाम दें वो खुदा की तरफ से हो और हमारे लिए बहुत सी बरकत का सबब बने पास्टर खालिद जावेद प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए
पास्टर खालिद जावेद, आपको हमारी आवाज आ रही? आई गेस पास्टर खालिद जावेद को हमारी आवाज नहीं आ रही। मैं ब्रदर अस्कर इमैनुअल से दरख्वास्त करूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने अपने लिए दुआ करें, खुदा का कलाम को मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कहें कि खुदावंद तू आज मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर, अपने कलाम के जरिए से मेरी गांठ छांट कर और मुझे आज फिर नया और ताजा मसा से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, ऐ बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से एक बार फिर तेरा शुक्र अदा करते हैं इस रूहानी महफिल के लिए। खुदावंद हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि जितने लोगों ने तेरे नाम को जलाल दिया है, प्रस्तिश की है, इन सब पर तेरी खास बरकत को मांगता हूँ। हालेलुया। और जबकि अब हम तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद तू हमें फिर अपनी आवाज सुनने के लिए तैयार कर। हालेलुया। और तेरे खादम पास्टर जॉन अशरफ के लिए भी गहरा मसा को मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज फिर अपने खादम को अपने नाम के लिए, काम के लिए और जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और खुदा मैं खास दुआ करता हूँ जितनी भी जिंदगियां तेरे आगे सरनगू हैं, खुदावंद इन सब पर भी तेरी खास बरकत को मांग लेते हैं, तेरे जलाल को मांग लेते हैं। और जितनी भी देखी और अनदेखी कुव्वतें जो हमें कलाम सुनने से रोकती हैं, उन सारी तासीरों को हम मिलकर यीशु के नाम से बांध देते हैं, डांट देते हैं। इर्द गिर्द की फिजा पाक हो जाए। हालेलुया। इर्द गिर्द के माहौल पाक हो जाए। हालेलुया। सुनने का खास फजल दे दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम महज सुनने वाले ना हो, बल्कि तेरे कलाम पर अमल करने वाले भी हों। बरकत देना। हालेलुया, बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। अब हम निहायत इज्जत और एहतराम से पास्टर जॉन अशरफ को दावत देते हैं कि वो खुदावंद का कलाम हम तक पहुंचाएं और खुदावंद हम सबको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता फरमाए। जी पास्टर जॉन अशरफ, वेलकम। शुक्रिया सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। मैं खुदा पाक का दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आज एक बार फिर मौका दिया कि मैं उसकी पाक हुजूरी में आकर आज ही इस खिदमत को सरअंजाम दे सकूं और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। तो आए मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम को खोलने से पहले आप इस विर्द को जरूर पढ़ें जो मुकाशवा की किताब और उसके दूसरे बाब की 8वीं से 11वीं आयत तक है। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को लिख के जो अव्वल और आखिर, हम देखते हैं कि जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लानतान को भी जानता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देख, अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए
उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। खुदाम के जिंदा मुकद्दस और जलाली कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। मैं खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ आज की इस खूबसूरत इबादत के लिए, तमाम परस्तिश के लिए जो बहन भाइयों ने की है। खुदा उनको बरकत दे। और इस ब्लेस प्रे के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ भाई असगर का, जिन्होंने मेरे लिए दुआ की ताकि हम सब आज की कलाम की इन खूबसूरत सच्चाइयों को सीख सकें, जान सकें और फिर अपनी जिंदगी में से इस्तेमाल कर सकें। अजीजों, यहाँ पर मसीह यीशु का तारुफ करवाया जाता है। जो लोग यीशु मसीह को खुदा नहीं जानते उनके बारे में यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यहाँ पर यूहन्ना जो है वो मसीह यीशु का तारुफ कराता है और वो कहता है कि जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, ये फरमाता है। यसाया की किताब में हम देखते हैं कि अव्वल और आखिर यानी अल्फा और ओमेगा यहोवा पाक खुदा को कहा गया है। और यहाँ पर मसीह यीशु जो अल्फा और ओमेगा, जो अव्वल और आखिर है। और यहाँ पर हम जब जो मर गया था यानी यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से उठा, ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। तो किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं जो यीशु मसीह को खुदा नहीं जानते उनके बारे में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सबूत है कि जो मर गया था वो जिंदा हुआ, अव्वल और आखिर और अल्फा और ओमेगा है। आए हम आखिरी इस हिस्से को देखते हैं जो 10वीं आयत है। ये हमारी मरकजी आयत होगी, 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा। एक है, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और फिर और खूबसूरत बात है उन रासबाजों के लिए, मुकद्दसीन के लिए, कि ऐसों पर जो जान देने तक वफादार रहते हैं, लिखा है कि जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। अजीजों, कलामे खुदा हमें बताता है कि दो बार पैदा होता है, यानी एक अपने माँ के बातन से और फिर वो पानी के बपतिस्मे से रूह कुदस की हजूरी और ममूरी में जब वो नई पैदाइश का तजुर्बा अपनी जिंदगी में रखता है तो वो दो तरह से पैदा होता है। वो कलाम उसे कहता है कि वो एक बार मरेगा, यानी वो मौत जो हर इंसान को आनी है। और जो एक बार पैदा होता है वो दो बार मरेगा, एक बार तबाही मौत, फिजिकल मौत, और फिर आग और गंधक की वो झील जो खुदावंद ने आखिरी दिन के लिए मुकर्रर कर रखी है। तो ऐसे में रास्तबाजों के लिए, मुकद्दसों के लिए एक बड़ा इनाम है जो खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो हमें मिलेगा, और वो ताज है। इसके अलावा पिछले कुछ हफ्तों में मैंने ये कलाम शेयर किया कि मुकद्दसों का अजर, और आज उसका पहला हिस्सा जो है वो ताज है। और ये 5 किस्म के ताज हैं जो मुकद्दसीन को दिए जाएंगे, जो जमीन पर उसकी पैरवी करते हैं, जमीन पर उसके साथ चलते हैं, वो उनको ये ताज अता करेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे इस किताब पर जो नबूवत की किताब है। और बहुत सारे लोग इस मुकाशवा की किताब को पढ़ने से डरते हैं और दूसरों को भी मशवरा देते हैं कि वो इसे ना पढ़ें, क्योंकि इसके पढ़ने से दिमाग उलट जाता है, इसके पढ़ने से बद अरवाह उन पर कब्जा कर लेती हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस की ये सच्चाई है, जो इसे पढ़ता है उसे आखिरत की रोशनी मिलती है, जो इसे पढ़कर अपनी जिंदगी इसके मुताबिक ढाल लेता है उस अंजाम के लिए जो खुदावंद ने आखिरी दिन हमको देना है, तो वो खुश होता है, वो उस ताज को हासिल करता है जो जिंदगी का ताज है, जो यीशु मसीह के साथ रहने की खुशखबरी है उन अब्दी मकानों में। तो मुकाशवा की किताब एक तवील जो है वो रोया है जो खुदावंद अपने बंदा यूहन्ना को, जिसे वो बहुत प्यार करता है, वो उस पर जाहिर करता है।
अजीजों, ये पेतमस के जजीरे पर जो मौजूदा यूनान है, वहां पर पेतमस का जजीरा, और जजीरा जहां पर चारों तरफ पानी हो और बीच में खुश्की का कुछ हिस्सा हो, उस जगह पर। और उस दौर में रोमन जो है बड़े सख्त थे, बड़े जालिम लोग थे, और वो उन तमाम को जो मसीह यस्सु की मनादी करते थे, जो मसीह यस्सु के कलाम को फैलाते थे, उन्हें वो वहां पर भेज देते थे और उन्हें कत्ल करते थे, उन्हें सलीब देते थे, उन्हें आग में जला देते थे, तेल के गर्म कड़ाहों में उन्हें डाल देते थे, ताकि वो जो है वो मर जाए और कलाम आगे ना फैले। तो पेतमस के जजीरे पर यूहन्ना को भेज दिया जाता है, कैदी किया जाता है, और बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 35 साल के बाद, वो अपने खुदा को और यीशु मसीह को जो अपने जो उनका स्ताव था उसे देखकर बड़ी उस वीराने में खुशी महसूस करता है, और उसका दिल उससे खुश हो जाता है, और खुदा उनका दीदार से नसीब होता है। ये यूहन्ना, मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ, बहुत सारे जब कलाम को सुनते हैं तो वो ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये कौन सा यूहन्ना है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है या दूसरा यूहन्ना है। तो जीजो, मैं यहाँ पर आपको इसकी बकायदा कलाम मुकद्दस से आइडेंटिफिकेशन देता हूँ कि ये जो यूहन्ना है, ये याकूब रसूल का भाई है, ये दोनों भाई हैं, और इनके वालिद का नाम जब्दी है, और इनकी माँ का नाम जो है वो सलोमी है, जो मुकद्दसा मरियम की हमशीरा है। यसु मसीह ने इन्हें गर्ज के बेटों का भी खिताब दिया, क्योंकि ये बड़े इमोशनल थे। जब भी कोई बात होती थी तो ये अगर आज की दुनिया में देखें तो मराने पर तुल जाते थे कि मसीह के खिलाफ अगर किसी ने कोई बात कह दी है। और आज भी ऐसा होना चाहिए कि जब कोई हमारे खुदावंद के खिलाफ कोई बात है तो हमें उसके खिलाफ स्टैंड लेने की जरूरत है। ये जो यूहन्ना है, ये गलील का शहरी है और सैदा के इलाके में रहता है, और पेशे के एतबार से ये माहीगीर है, मछलियां पकड़ते हैं। ये गलील की झील पर मछलियों को पकड़ते हैं। और उस वक्त बनी इस्राएल कौम जो है वो 3 मशहूर पेशों में बटी हुई थी। जैसे वो खेती बाड़ी करते थे, जहाँ पर अंगूर के बहुत सारे दरख्त थे, इसी तरह वहाँ पर अंजीर वाफर मिकदार में वहाँ के दरख्त थे। फिर इसके साथ साथ जो वहाँ पर जैतून के दरख्त बहुत थे। तो यूहन्ना जो है वो माहीगीर है, और जवानी के आलम में ये खुदा के पास आता है। यीशु मसीह के पास आने से पहले ये यूहन्ना असबागी बपतिस्मा देने वाले का शागिर्द है, और ये दोनों भाई जो है खुदा के पास आते हैं और उसकी शागिर्दियत में ये सीखते हैं। अजीजों, इसे कलाम मुकद्दस में मोहब्बत का रसूल भी कहा गया। ये मोहब्बत के रसूल से भी जाना और पहचाना जाता है। आए कुछ वक्त हम इस कलीसिया के बारे में देखेंगे कि ये कलीसिया कहाँ पर वाक़या थी और इसकी क्या खुसूसियात थी। अजीजों, कलीसिया जो है वो मसीह का बदन है, मसीह की दुल्हन है, मुकद्दसों की जमात है, और यीशु मसीह के पाक लहू से धुले हुए लोगों का ग्रोह है, जो उसके कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। और खुदा उनका हम शुक्र अदा करते हैं। ये कलीसिया जो है उन तकलीफों को, उन मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ती है। स्मरना के जो लुगवी मायना है वो है मुर के, और मुर के दरख्त वहां पर मौजूद है, और इसको छील कर कट लगाते थे। वहां पर एक हवा नमी की वजह से वहां पर जो इसका लिक्विड बाहर निकलता था, तो ये एक खुशबूदार दरख्त था। और जब यीशु मसीह की पैदाइश पर हम देखते हैं कि मजूसी जो बादशाह थे वहां पर पहुंचे, उसमें से एक ने वहां पर मुर का तोहफा दिया। और मुर जो है वो दुखों को जाहिर करता है, मुसीबतों को जाहिर करता है। और जब हम कलाम मुकद्दस को बगौर अहद अतीक में भी देखें तो मुर हमें वहां पर भी इस्तेमाल होता नजर आता है।
आज जो ये कलीसिया है वहां पर मौजूद नहीं, लेकिन आज वो शहर जो तुर्की में है, अजमेर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये जो शहर है ये समंदर के किनारे पर है और ये कुदरती बंदरगाह थी उस वक्त, और यहाँ से एशिया कूचक और यूरोप के अंदर खरीदो फरोख्त या तिजारत का काम होता था। अजीजों, इस शहर को जो है वो एशिया का जो है नूर भी कहा जाता था, और इसे एशिया का ताज का भी लक़ब मिला हुआ है। और फिर इसे तीसरा लक़ब जो है वो मिला है, वो लाजवाब फूल कहा जाता था शहर को। और ये शहर जो है बहुत मशहूर था उस वक्त में। यहाँ पर मशहूर देवता यूरिस का मुजस्समा भी था। इस शहर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इसमें जो कलीसिया थी वो बड़ी सब्र करने वाली कलीसिया थी, मसीह के हुक्मों पर चलने वाली कलीसिया थी। अगर हम सातों कलीसियाओं को देखें तो ये वाहिद कलीसिया है जिसको मसीह यीशु ने उसकी तारीफ की है, इसे अमीर कहा है, दौलतमंद कहा है, क्योंकि ये जो अज़ार सानी थी इसने वहां पर उसको कबूल किया। और 1-2 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 250 साल तक ये मुफ्त तरह से सिताई गई, तकलीफों और मुसीबतों में पड़ी, लेकिन ये साबित कदम रही, ईमान को नहीं छोड़ा, ईमान पर डटी रही। और ये वो दौर है रोमन्स का कि जब इस कलीसिया पर जुल्म सितम ढाए गए, लेकिन ये इन्होंने उनके आगे, रोमन्स के आगे हार नहीं मानी, बल्कि अपने जिंदा खुदा के तालिब रहे, उसके साथ लिपटे रहे। ये कलीसिया ईमान में भी बड़ी मजबूत कलीसिया थी, बावजूद मुसीबतों के, बावजूद तकलीफों के, ये मजबूत कलीसिया थी, ईमान को नहीं छोड़ा। आज अगर हम आज की कलीसियों को मुआवजा करें, आज अगर हम देखें तो अजीजों में, अगर हम पर थोड़ी सी दुख तकलीफ आ जाती है, हम पर मुसीबत आ जाती, तो हम जो है वो खुदा के खिलाफ हो जाती हैं और अपनी जुबान से ये कहना शुरू कर देते, क्या ए खुदावंद, ये सारे दुख तकलीफ हमारे लिए हैं, ये मेरे लिए ही हैं? नहीं मेरे अजीजों, आज भी दुख सहना है, क्योंकि दुख सहने वालों के लिए बहुत बड़ा अजर है जो खुदा मुनसिफ जो है वो अपने तलबगारों को देगा, उनको देगा जो उसकी पैरवी करते हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं और उसके हुक्मों की तकमील करते हैं, इनकार नहीं करते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत मशहूर खुदा का खादम सन 155 में, वो उसका नाम है जो इस कलीसिया का बिशप था, पोलीकार्प। अजीजों, उसके मुतालिक हम पढ़ते हैं कि ये ऐसा एक आदम था, इसे रोमन्स ने कहा कि वो जिंदा खुदा की, यीशु मसीह की उसकी अलूहियत से इनकार करे, उसे उसके कलाम को जो है जो वो सुनाता था ना सुनाए। और मेरे अजीजों, इसे जो रोमन्स ने स्टेडियम के अंदर यहाँ पर शहीद करने का प्रोग्राम बनाया, और शहादत से पहले अजीजों इस खुदा के खादम ने मसीह, वो कहते थे कि मसीह का इनकार कर, जबकि हम रोमन्स को देखें कि वो बादशाह को या शहनशाह को वो खुदा माने, और मसीहों ने तब भी इनकार किया। और इस खुदा के खादम ने, पोलीकार्प ने, इसने कहा, और इसके अल्फाज बड़े खूबसूरत है, आज कलीसियों को, आज खादमों को, आज तमाम बहन भाइयों को भी ये इनकरेज करते हैं, हौसला देते हैं कि हमें मसीह का इनकार नहीं करना, बल्कि हमने उसका इकरार करना, चाहे हमें कुछ भी हो, चाहे मौत हमें का दी जाए। इसने कहा, मैंने जिस मसीह की 86 बरस खिदमत की है वो मुझसे हमेशा वफादार रहा है, क्यों अपने निजात दहिंदे का इनकार करूं? और इसे इतवार के रोज जो है वो बांध कर लकड़ियों पर रखा गया, और फिर लकड़ियों को, जैसा कि हिंदुओं में वो चिता को जलाते हैं, इस तरह से ऊपर रखकर आग लगा दी।
और खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। हमने अहद अतीक में पढ़ते हैं कि उसने सिदरिक, मिस्रिक, अब्दुन्नजू को आग की जलती हुई भट्टी से निकाला। तो उसी खुदा पर इसका यकीन था, उसी पर हमारा यकीन है। तो अजीजों, लकड़ियां तो जलती नहीं, लेकिन इसे कुछ जरूरत ना पहुंचे, सलामत रहा। और इसके बाद वहां पर किसी जलाद ने, किसी जो अज़ा रसानी करने वाला था, उसे क्या किया कि इसके छुरा घोंप दिया। और तारीख बताती है, रवायत है कि जब इसे छुरा घोंपा गया तो उससे ब्लड निकला, उससे वो आग बुझ गई और वहां पर एक सफेद कबूतर नमूदार हुआ, जो रूह कुदरत की अलामत है। तो आज मुझे और आपको जब मुसीबत का सामना हो, जब हम किसी बुरे हालात में हो, तो मेरे जो सब्र का दामन ना छोड़े, क्योंकि जिंदा खुदा हमारे साथ, उसने कहा है माँ बाप छोड़ देते हैं लेकिन खुदा हमें नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमारे साथ साथ है। इस तरह हम देखते हैं कि ये जाम शहादत इसने पाई। अजीजों, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मुकद्दसों का ताज। अजीजों, कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं कि मुकद्दसों को 5 किस्म के ताज दिए जाएंगे, जो मेरे लिए और आपके लिए हैं। लेकिन ये अभी नहीं, अभी हम जिंदा हैं। ये तब मिलेंगे जब हम जमीन पर वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते रहेंगे। तो वही मौत मर जाएंगे, या फिर किसी अजार सानी के सबब से, ब्लास्फेमी के सबब से मरेंगे। तो फिर मरने के बाद जब आदल मुंसिफ इंसाफ करेगा, तो विक्ट्री स्टैंड पर खड़े करके उनका नाम पुकारा जाएगा और वो ताज दिए जाएंगे, वज्र दिए जाएंगे, जो मुंसिफ आदिल बादशाह ने हमारे लिए मुकर्रर कर रखी। तो शर्त यह है कि जान देने तक हमें वफादार है ना, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये यीशु मसीह के जुबान मुबारक से लिखे हुए अल्फाज हैं। वफादार मुकद्दसों के लिए ताज, यानी उनके लिए जो वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं। बेईमानों के लिए, नाफरमानों के लिए नहीं, जो इस जमीन पर उसकी नाफरमानी करते, उसके कलाम को नहीं सुनते, उस कलाम को सुनकर कबूल नहीं करते, उनके लिए आग और गंधक की झील है, जो कभी बुझने के लिए। आए हम रासबाजों के ताज को, मुकद्दसों के ताज को सीखेंगे। पहला ताज जो है वो रासबाजी का ताज है। उनको दिया जाएगा जो और इसे ना कुमलाने वाला, यानी ना मुरझाने वाला सेहरा भी कहा गया है। ये ताज उन ईमानदारों के लिए है जो वफादारी के साथ अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ गुजारते हैं, जो जिस्म की ख्वाहिशों को मारते और अपनी जिंदगी को गवाही से दूर, गवाही की जिंदगी गुजारते हैं, यानी मसीह के साथ जिंदगी गुजारते हैं। आज अजीजों, बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो जिस्मानी तौर पर, जैसा कि गलतियों के खत में हम पढ़ते हैं 5वें बाब में, कि वो जिस्म के जो काम करते हैं, ये जो जिनको मुकद्दसीन कहा गया है, ये इन कामों से बाज रहे। और ये ताज, रासबाजी का ताज, जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं किया, अपनी पोशाक को पाक और साफ रखा। यस्सु के पाक लहू से धुले हुए लोगों ने अपनी पोशाक की हिफाजत की, और कलाम खुदा में इन्हें रासबाजी का ताज दिया जाएगा। अजीजों, अपनी जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारी। और हम तीमुथियुस के दूसरे खत में पढ़ते हैं कि ये ताज जो दिया है, 4 बाब की 8 में अपने पौलुस रसूल लिखते हैं तीमुथियुस को, ऐंदा को मेरे लिए रासबाजी का वो ताज रखा हुआ है, जो आदिल मुंसिफ यानी यीशु अल मसीह उस दिन मुझे देगा, जब क़यामत के बाद, यानी जब वो जी उठेंगे और दुल्हन आसमान पर जाएगी, उसको यानी यीशु के ज़हूर के वक्त उनको दिया जाएगा। कितनी खुशी की बात है। और मैं आपको ये बताना जरूर समझता हूँ कि जैसा मैंने देखा, हम जब ताज पहने तो कितने अपने आप को खूबसूरत बेटियां जब सेल्फी बनाती हैं तो उनके ऊपर ऑटोमेटिकली ताज आ जाता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हमें ये ताज पहनाए जाएंगे तो हम खूबसूरत लगेंगे,
और खुदा के नाम को जलाल देंगे। तो अजीजों, पहला ताज हमने देखा कि वो रास्तबाजी का ताज है जो आदिल मनुष्य को हम सबको पहनाएगा। और फिर ताज की कुछ इकसाम है, ये शायद हीरे जवाहरात के सोने के बने हुए ताज हैं। ये आदिल मनुष्य मुझे और आपको उन रास्तबाजी को देगा जो जमीन पर उसके साथ रास्तबाजी के साथ चलते रहे। दूसरा ताज है वो जलाल का ताज है, यानी क्रॉन ऑफ ग्लोरी। ये ताज वफादारी के साथ खुदा का कलाम सुनाने और सिखाते हैं उनको दिया जाएगा, यानी सच्चे गलाबानों को जो अपने रेवड़ की खूब हिफाजत करते हैं। कलाम में लिखा अपने रेवड़ की खूब हिफाजत कर, उनको वक्त पर खुराक दे, कलाम उनको दे। और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा, यानी यसु अल मसीह, तो जलाल का ऐसा चेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ये ताज एल्डरों को, गल्लाबानों को, मुबशरों को, उस्तादों को, बिशप्स को और खादमों को मिलेगा। ये जो क्रॉन ऑफ ग्लोरी है, यानी रास्तबाजी का जलाल का ताज उन्हें दिया जाएगा। इसके बाद अजीजों, हम सदाकत का ताज भी पहनेंगे। ये ताज जो है, ये खूबसूरत ताज जो खुदा उनको देगा जो मसीह यीशु की दूसरी आमद के इंतजार में होंगे। आज दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे उस वक्त भी जब मसीह यीशु आसमान पर चले गए, उसने वादा किया कि मैं फिर आऊंगा, तो कुछ अरसे के बाद ये वादा लोग भूल गए। और बहुत सारे लोग जो यीशु अल मसीह की अलूहियत को नहीं जानते, उसे नहीं पहचानते, वो कहते हैं कि यीशु आएगा या नहीं आएगा। और बहुत सारी कलीसियों में बेचैनी है कि वो आएगा या नहीं। लेकिन सच्चे मुकद्दसीन, सच्चे मसीही जो हैं, उसके इंतजार में उनका ईमान है कि एक दिन यीशु अल मसीह आएगा और हमको भी साथ लेकर जाएगा। जब वो बादलों पर आएगा, जब हम थस्सलुनीकियों के खत में ऐसे पढ़ते हैं, तो जब मसीह यीशु बादलों पर आएगा तो उनको साथ लेकर जाएगा और उन्हें क्रॉन ऑफ ग्लोरी देगा, उन्हें जो है ताज अता करेगा और उनके सरों पर वो ताज रखे जाएंगे। अजीजों, हमने देखा जो सदाकत का ताज है वो मसीह की दूसरी आमद के इंतजार करने वाले लोगों को, उनको इंतजार है। आज अगर किसी से पूछा जाए कि भाई आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तो शायद उनको ये अंदाजा नहीं हो। लेकिन रास्तबाज जो यीशु के साथ चलते हैं, उनकी मजबूत उम्मीद है, वो उसके इंतजार में है। और मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं कि कलीसिया कहती है कि यीशु जल्द आ, वो उसके इंतजार में है। तो ये सदाकत का ताज उनको दिया जाएगा। और फिर चौथा ताज जो है खुशी और फख्र का ताज है। ये उनके लिए जो दूसरों को मसीह के लिए जीते हैं, और इसको रूहों को जीतने का ताज भी कहा गया। मेरे दोस्तों, कलाम मुकद्दस में ये चौथा ताज है जो मुकद्दसीन को दिया जाएगा। ये उनको दिया जाएगा जो मसीह की खातर लोगों को जीतते हैं, कलाम सुनाते हैं। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को सुना होगा जो विनिंग सोल, ये सोल विनिंग प्रोग्राम्स हैं, यीशु के लिए रूहों को जीते हैं। अगर आपने एक भी रूह को जीत लिया तो आप इस ताज के मुस्तहिक हैं, आप इस ताज के हकदार हैं। ये ताज उनको दिया जाएगा जो मसीह के लिए रूहों को जीतते हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, चाहे वो अपने घर की रूह क्यों ना, उसको जीतते हैं, उन्हें ये ताज दिया जाएगा। हाँ, आखिरी एक और ताज है जो पांचवा ताज है, जो जिंदगी का ताज है, द क्रॉन ऑफ ग्लोरी, क्रॉन ऑफ लाइफ जो दिया जाएगा। इस तरह जो पहले हमने ताजों को देखा, उसकी हमने देखा कि वो किन को दिए जाएंगे। लेकिन ये जो ताज है, क्रॉन ऑफ लाइफ है, ये मसीह की खातर दुख उठाने और जान देने तक वफादार रहने वालों को दिया जाएगा। मुकाशफा 2 बाब पर उसकी 10वीं आयत में ये बात हमें मिलती है कि ये दुखों को सहने वालों के लिए, जान देने तक वफादार रहने वालों को ये ताज दिया जाएगा। और याकूब की खत में भी इसकी वजाहत की है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। अब अगर कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होगा, आपको मालूम होगा कि
कलाम मुकद्दस में लिए रासबाजों के लिए बरगजीदों के लिए 32,500 वादे किए। उनमें से एक वादा ये भी है कि जो जान देने तक वफादार रहेगा उसे जिंदगी का ताज मिलेगा, उसे क्राउन ऑफ लाइफ मिलेगा। हम देखते हैं आज बहुत सारी दुनिया के अंदर बहुत सारी कलीसियों में ये हजार सानी मुसीबतों दुखों को सहना पड़ता, तो उनको ये ताज दिया जाएगा। हमें घबराना नहीं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अजर बाकी है जो खुदा हमें देगा। हम स्टीफनस को देखते हैं, हम कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब में से पढ़ते हैं कि स्टीफनस को जो पहला शहीद है, जब उसे शहीद किया जा रहा था तो वो ये नहीं कह रहा था कि मुझे बचाओ या इस तरह के, बल्कि उसकी नजर जो आसमान पर थी, ना वो पत्थरों को देख रहा था जिससे उसको संसार किया जा रहा था। और फिर उसने ये भी कहा कि खुदा इनको माफ कर, ये जो कर रहे इनके जिम्मे ना लगा। उसकी नजर आसमान पर, उसने आसमान को खुला हुआ देखा। जो आखिर तक यानी जान देने तक वफादार की हुजूरी और मेमोरी उन्हें नजर आती है। और आम बहुत सारी आयतों में देखते हैं खुदा यीशु मसीह जो है बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, हम वो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं स्टीफनस बताता है कि उसने खुदा यीशु मसीह को जो मर गया था, जो जिंदा हुआ, अब अब्दुल आबाद जिंदा रहेगी, जिसे क़यामत पर दिखता है, कहता है राह और जिंदगी मैं हूँ, जिसे अदालत करने का भी इख्तियार है, और वही आदल और मुंसिफ है, वो उसे खड़ा हुआ देखता है उसके इस्तकबाल के लिए। और मुकद्दसों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जब हम इस जहां फानी से रुखसत होंगे, खुदा हमें जिंदगी का ताज देगा। कुरली कार्लब को भी आपने देखा, उसे भी यकीनन खुदा उनका ताज ये मिला होगा। और जॉन वेस्ली के मतलब जिसने बहुत सारी खिदमत की है, उसके मतलब मैंने एक बुक में पढ़ा था कि वो जब उसने ख्वाब में देखा कि वो मर गया है, और जब वो खुदा की हुजूरी में है तो एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा ताज वहां पर मौजूद है। और उसकी उस ख्वाहिश थी कि ये ताज शायद मेरे लिए खुदा ने रखा हुआ है, लेकिन खुदा ने कहा ये तेरे लिए नहीं है। और फिर उसने कहा ये किसके लिए है? और एक बूढ़िया सी औरत दिखाई गई, देखी, और उसने कहा कि ये ताज इसके लिए है। और वो ताज इसलिए उसके लिए था क्योंकि वो उसके लिए जॉन वेस्ली के हर रोज दुआ करती थी। और आज भी खादमों के पीछे दुआओं का बड़ा असर होता है। जब दुआएं की जाती है, खादम जो है कलाम शेयर करते हैं, उन्हें बोलने की कुव्वत मिलती है। इसलिए पौलुस रसूल भी कहता है कि मेरे लिए भी दुआ करो ताकि मुझे बोलते वक्त कुव्वत मिले, ताकि मैं कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकूं। अजीजों, इस ताज को हासिल करने के लिए हमें आजमाइशों से गुजरना बहुत ही जरूरी है। अगर हम आजमाइशों से नहीं गुजरते, मुसीबतों से नहीं गुजरते, तो आप शायद उस ताज को खो लें। और दूसरी इसकी जो शर्त है वो है मसीह से मोहब्बत करना। बहुत सारे मसीही हैं, वो नामी मसीह से मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ नाम का लेबल लगा हुआ है, वो मसीह को जानते तक नहीं। लेकिन जब जानेंगे नहीं तो कैसे मोहब्बत करेंगे? तो जरूर है कि मसीह से मोहब्बत करना जरूरी है, क्योंकि उसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी। और खुदा ने खुदा से मोहब्बत, जैसा कि कलाम में लिखा है यूहन्ना 3 उसकी 16 में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी उसके बेटे यीशु के लहू की कुदरत से पाई जाती है। फिर जान देने तक वफादार रहना। आज अगर कभी हमें ऐसा वक्त हमारी जिंदगी में आ जाए, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है, हम जहां तक इब्लीस वो जो इस दुनिया का हाकिम है, आखिरी दौर में हम रह रहे हैं, और हम जानते हैं कि उसका दौर जो है वो एक वक्त आएगा कि खाने पीने के अशिया भी नहीं मिलेंगे। उस वक्त बहुत सारे लोग इनकार कर देंगे, लेकिन हमें ईमान पर कायम रहना। हमें खुदा उनसे हर रोज दुआ करने के वक्त हम जब हमें चॉइस करनी पड़े, चुनाव करना पड़े, मसीह या इब्लीस या 666, उस वक्त हमें
मसीह को ही कहना कि मसीह अभी मरे या जिए हम मसीह के हैं, और फिर जाकर हमें उन ताजों को लेने का हक मिलेगा। आए अजीजों, जब हम कलाम को सुनते हैं तो ये एक तरफ तो बड़ी खुशखबरी है उन मुकद्दसीन के लिए जिन्हें खूबसूरत ताज दिए जाएंगे, लेकिन उसकी शर्त है कि हमें मुसीबतों, परेशानियों में, दुखों में कभी भी उसका इनकार नहीं करना, क्योंकि वो हमारा इनकार नहीं करता। और कलाम खुदा में यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। और फिर कलाम में लिखा कि मेरा ईमानदार बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मुझे दुख होगा। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो जमीन पर भी हमें अजर देता है और फिर हमेशा की जिंदगी का भी अजर हमें मिलेगा। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको और तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पाजी जॉन अशरफ, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। बहुत शुक्रिया पाजी साहब इस नहायत ही मौसर कलाम के लिए जो हमारे लिए, हमारी रूहों के लिए बहुत सी बरकत का बायस बना। आपके लिए, आपके घराने के लिए बहुत सी दुआ है कि खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें और आप इसी तरह रूहों को जीतते रहें। अब मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर सैमुअल जिनास से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें ताकि ये बाबरकत कलाम जो हमने सुना, रास्तबाजी का ताज, सदाकत का ताज, ज़िंदगी का ताज, ये हमारी रूहों में बस जाए और हम इन सब ताज के लिए जो खुदावंद ने हमारे लिए रख छोड़े हैं, हम उनको लेने वाले बन सकें। पादरी सैमुअल जिनास अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए। जिंदा कुदूस जलाली आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम में शुक्रगुजार है तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार के लिए, तेरे सच्चे अजीम लाजवाल ला तब्दील ला महदूद वादों के लिए जो सब के सब हाँ के साथ हैं और तूने पूरा करने को उनके पीछे ठहरा रहता है। जब जब हम तेरे नाम को पुकारते हैं, आए खुदावंद ईमान में कायम रहते हुए, उसी वक्त तो अपनी कुदरत के साथ अपने वादों को पूरा करने के लिए उतर आता है, ताकि आए खुदावंद तेरी कुदरत, तेरा जलाल तेरे लोगों की जिंदगियों से जाहिर हो। इस सच्चे जलाली कुदरत वाले कलाम के लिए जो तूने आज अपने खादिम के वसीला हम तक पहुंचाया, कि हमें जान देने तक वफादार रहना है। आए खुदावंद हालात कैसे भी क्यों ना आए, मुश्किलात कैसी भी क्यों ना हो, परेशानियां, तकलीफ की आजमाइशें कैसी भी क्यों ना हो, जब हम उन पे गालिब आते हैं रूह कुछ की कुदरत से, क्योंकि तेरा पाक रूह हमें कुव्वत देता है, तेरा पाक रूह हमें जोर देता है ताकि हम उन पे गालिब आए। तो आए खुदावंद हम तुझ में कायम रहते हैं, और वो जलाली अजीम ताज जो तूने अपने लोगों के लिए रखा है, ऐ खुदावंद जिन्हें तू नाम बनाम जानता है, तू उनको बख्शता है, उसे हासिल कर सके। तेरे खादिम की खिदमत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, उसके घराने के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, और ज्यादा कसरत से, जलाल से, रूहुल कुद्स की मामूरी से ऐ खुदावंद अपने खादिम को इस्तेमाल कर, और ज्यादा रूह की आग अपने खादिम के अंदर लगा। ऐ खुदावंद और ज्यादा रूह का मस्सा अपने खादिम के अंदर ले आ, अपने मुकाशफात को और कसरत से अपने खादिम पे उंडेल, और ज्यादा अपनी मार्फत से मामूर कर, अपने फहम और अपनी हिकमत से मामूर करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हम सब की जिंदगियों से इस जिंदा कलाम के वसीला से ऐ खुदावंद अपनी कुदरत से हमें मामूर किया, और हम सब की जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर किया। इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। यीशु मसीह के कुदूस नाम में सुनो, कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अब हम इबादत के बाकी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और हम दुआ मांगेंगे असाइलम सीकर्स के लिए, बेऔलाद जोड़ों के लिए और तमाम बीमारों के लिए। और मैं दरख्वास्त करूंगी पहली दुआ जो कि असाइलम सीकर्स के लिए की जाएगी, उसमें अगर पास्टर खालिद जावेद हमारी रहनुमाई कर दीजिए। और दूसरी दुआ जो कि बेऔलाद जोड़ों के लिए की जाएगी, पास्टर चमन अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो आप ये दुआ कीजिएगा। और बीमारों के लिए
मैं मिन्नत करूंगी मैं जस्ट सब जरा ऑनलाइन देख लूं। ब्रदर आसिफ कल्याण, अगर आप हमारी दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। पहली दुआ असाइलम सीकर्स के लिए, अगर पास्टर खालिद जावेद आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए। हेलो हेलो हेलो, जी आपकी आवाज हम आवाज आ रही? जी बिल्कुल। कदूस 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 अल्लाह खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए खुदा बाप, जो तुमने हमें बख्शा ताकि खुदावंद तुझे सजदा करे, धन्यवाद करे। खुदावंद तू ही सजदा, ताज़ीम और इज्जत के लायक खुदा है। तेरे लोगों के लिए खुदावंद बरकत चाहता हूँ, जिसके साथ हो बड़ी बरकत दे। खुदावंद जितने भी आईडी पर खुदावंद लोग हैं, इन सबको बड़ी बरकत देना, तमाम फैमिलियों को, पास्टर को, और खुदावंद इसी तरह खुदावंद जो जिन्होंने साइलम अप्लाई किया हुआ है, तो खुदावंद उसके लिए भी मैं दुआ करता हूँ, जिस जिस मुल्क में है, जहाँ जहाँ भी खुदावंद तू उनको लेके गया है, और जो जो जहाँ जहाँ भी उन्होंने केस किए हैं, उनके केस को खुदावंद तू मुस्बत कर, ताकि उनकी खुदावंद तमाम तर जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सके, और खुदावंद उसकी ये ज़रूरतें पूरी हो सके, उसको इस परेशानी से निकाल और सुकून बख्श खुदावंद। खुदावंद जब तक उसको साइलम नहीं मिलता, तब तक वो उसको सुकून नहीं मिल सकता। उन्हें सुकून के लिए खुदावंद को इस दुआ को हम तेरे सामने करते हैं कि खुदावंद दुनिया के जिस भी कोने में, जहाँ जहाँ भी और जिस जिस मुल्क में उन्होंने साइलम अप्लाई किया है, उन्हें बड़ी बरकत देना। तो खुदावंद जो दूसरे लोग भी चाहते हैं साइलम अप्लाई करना, उसके लिए भी बरकत चाहते हैं, उन्हें भी खुदावंद का तौफीक दे, वो भी ऐसा कर सके। और खुदावंद जो लोग दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या जैसे भी रहने के लिए, तो खुदावंद उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह खुदावंद के जहाँ जहाँ भी जाएंगे, पूरी दुनिया और पूरी जमीन तेरी है खुदावंद, और जहाँ भी तू किसी को लेकर जाता है, ये तेरी मर्जी से सब कुछ होता है खुदावंद। इंसान की ख्वाहिशें या इंसान की वो पूरी नहीं हो सकती, मगर इंसान सोचता ही जाए तो कुछ भी नहीं पूरा हो सकता जब तक तेरा फजल ना हो, तेरी रहम ना हो, तेरा प्यार ना हो। जब तक तू ना चाहे तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता खुदावंद। इसी तरह खुदावंद रानों को, बहनों को, भाइयों को, सबको बड़ी बरकत देता है। तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह बाबुस्मा ने इसी साल में और नए साल में जो जो लोगों ने अप्लाई किया था, उन्हें बरकत देना। तेरा शुक्र को उन्होंने वो मुल्क अता फरमा। तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। जी पास्टर चमन साहब, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ कीजिए। थैंक यू बेटा। खुदावन कदूस रब्बुल फाज, खुदा बादशाहों के बादशाह, लश्करों के रब, तेरा शुक्र करते हैं आज शाम खुदावन, जो खुदावन तूने फरमाया कि जहाँ दो या तीन मौजूद होते हैं, मेरा नाम लेते हैं, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। खुदावन तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, जो तू दोनों नज़दीक से हम सबको एक पेज पे इकट्ठा करता है और ये तौफीक बख्शता है कि हम तेरी हम्दो सना करें, तेरे कलाम की सच्ची और अमीर बातों को सुने और सीखें। खुदावन तेरा शुक्र हो, क्योंकि मेरे खुदावन तुझे ये अच्छा लगता है कि तेरी बेटियां और तेरे बेटे बाहम मिलकर तेरे हजूर हाजिर हों, तुझे धन्यवाद कहें, तेरे नाम की बढ़ाई करें, तुझे सजदा करें।
खुदावंद क्योंकि तेरे सिवा कोई सजदे के लायक नहीं है, ना जमीन पर, ना आसमान पर, ना जमीन के नीचे। तू वाहिद खुदाए कादर है जो सजदे के लायक है। खुदावंद हम तेरे हजूर सब मिलकर आते और तुझे सजदा करते हैं। और खुदावंद तेरी उन बेटियों को, उन जोड़ों को तेरे हजूर लाते और तेरे तख्त के सामने लाते हैं और तेरे हजूर मिन्नत करते हैं। खुदावंद जो शादीशुदा होने के बावजूद अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तो अपने आसमान को खोल और उन्हें ब्लेस कर और औलाद जैसी नेमत से आसूदा कर। खुदावंद जो दरवाजे आज तक बंद हैं, तेरे हजूर तेरी मिन्नत करते हम उनके लिए वो दरवाजे खुल जाए। और खुदावंद तो उनको जो क्योंकि तो तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू बांझ को बच्चों वाली बनाता और उसका दिल शाद करता है। तेरे हजूर दरख्वास्त करता हूँ खुदावंद, जिस तरह तूने हन्ना को औलाद वाली किया और दिलशाद किया है, जिस तरह तूने सारा को औलाद बख्शी है बुढ़ापे में, इसी तरह खुदावंद तू बे औलाद जोड़ों को, उन बेटियों और उन बहनों को जो औलाद अपने यहाँ नहीं रखती, खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ तू उन्हें औलाद बख्श और अपना आसमान खोल और उन्हें ब्लेस कर। और खुदावंद मैं उन बेटियों और उन बेटों के लिए भी तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, दरख्वास्त गुजार हूँ कि जो बेटे बेटियां शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं और मुनासिब रिश्ते नाते ना मिलने के सबब अभी तक खुदावंद वो शादी के बंधन में नहीं बन सके, जिनके वालिदैन खुदावंद इस सबब से परेशान हैं, तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद तो उन्हें मुनासिब रिश्ते, मुनासिब लोग, मुनासिब साथी मिला, ताकि खुदावंद वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी को शुरू कर सकें। सॉरी। और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें, उनके वालिदैन मुतमईन हों, खुश हों और तेरी शुक्रगुजारी करें, ताकि खुदावंद नेक और खुदा तरस औलाद पैदा हो। बाकी खुदावंद मैं उन नौजवानों के लिए तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ जो नशे की लत में पड़े हुए हैं और जिनकी वजह से उनके पूरे घराने डिस्टर्ब हैं, जिनकी जिंदगी बेजार है, जो खुदावंद तेरी भेड़ें खो गई हैं, उनके लिए तेरी मिन्नत करता हूँ। खोए हुए लोगों की वापसी हो, खुदावंद तू उन पर रहम करे, ताकि खुदावंद वो नशे को छोड़कर तेरे हजूर आ जाएं और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करें। खुदावंद तो उन लोगों को ये तौफीक बख्श जो खुदावंद नशेबाजी करते हैं, उसको छोड़कर तेरे हजूर आ जाए। खुदावंद इस वक्त तू मेरी इस मुनाजात की आवाज को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, रहीम होकर बख्श दे, आमीन। आमीन आमीन। शुक्रिया पास्टर चमन। बेशक वो नहायत रहीम और कदीर खुदावंद है, हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है, बल्कि वो हमारे मांगने से पेशतर ही जानता है कि हम किन किन चीज़ों के भूखे और प्यासे हैं। अब मैं मिन्नत करूंगी पास्टर जॉन अशरफ से कि वो तमाम तर बीमारों के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए और तमाम तर बहन और भाई जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें हमें ईमेल के ज़रिए या चैट में भेजी हैं, उन सब के लिए भी दुआ कीजिए। क्योंकि सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आए हम सब ईमान के साथ इसी तरह खुदा के सुंदर कदमों में झुके रहेंगे और मिलकर दुआ करेंगे ईमान के साथ, क्योंकि ईमान से की हुई दुआएं खुदा कबूल करता और उनका जवाब देता है। कादर मुतलिक की हवा पा खुदा,
मैं दिल और दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा ताकि हम तेरी हुजूरी में आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तुझे धन्यवाद कह सके खुदा खुदा। हाँ खुदा उन तमाम बीमारों के लिए जो तेरा वादा है कि मैं ही तुझे शिफा बख्शूं, क्योंकि खुदा तू ही शाफी है, तू ही तबीब आज़म है और अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफाए कामिला अता करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुम्हारी दुआओं को सुनता है, तू हमारी इल्तिजाओं पर अपने कान लगाता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा में तेरी पाक हुजूरी में उन तमाम मरीजों के लिए जो कोरोना वायरस की वजह से बीमारी की हालत में, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में, खुदा खुसूसी तौर पर खुदा भाई नवीद रजा के लिए जब खुदा कोविड-19 पॉजिटिव है, यीशु जी अपना जलाली और खुलूस वाला हाथ बढ़ा और शिफा अता कर ताकि तेरा बेटा खुदा तेरी गवाही दे के मेरे यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। आसमानी बाप इस तरफ मैं तेरी पाक हजूरी में दरख्वास्त गुजार हूँ सिस्टर साजिदा के लिए, जब खुदा उसका जो शोल्डर है फ्रोजन है, खुदा तू शाफी है, अपने पाक लोह की धारा से छू और मुकम्मल शिफा अता कर खुदा। इसी तरह तेरी पाक हुजूरी में तमाम डायलिसिस पेशेंट्स के लिए जिनमें खुदा बिशप अकरम जान, खुदा सिस्टर रूही, सिस्टर सबा जो हालन में खुदा मुकम्मल शिफा अता कर खुदा। तमाम शुगर पेशेंट्स के लिए खुदा भाई अजीज के लिए, उनकी मिसेस के लिए, पास्टर चमन के लिए, बेटी हिना के लिए और जितने और खुदा इस मर्ज में निकला खुदा इस बदन में वही मकदार जो तूने इंसानों के लिए मुकर्रर कर रखी उसी मकदार में ये बॉडी को खुदा प्रोड्यूस करी, उस शुगर को प्रोड्यूस करे जिसकी ज़रूरत है। खुदा इसी तरह तेरी पाक हुजूरी में हार्ट पेशेंट्स के लिए खुदा भाई क्रिस्टोफर के लिए, भाई जिया के लिए खुदा भाई बाबर शाकर के लिए, क्योंकि खुदा ये मुसलसल बीमारी की हालत में खुदा क्योंकि खुदा तू ही शाफी है, इनके दिलों पर खुदा तेरे पाक लोह की कुदरत को मांगते हैं, क्योंकि खुदा ये दिल बदन का एक बड़ा अहम उज़ू है जो खुदा पूरी बॉडी को खून मुहैया करता है। खुदा जो भी खराबी है यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में जाती है। आसमानी बाप इसी तरह तेरी पाक हुजूरी में मिन्नत और दरख्वास्त करते हैं खुदा तमाम उन कैंसर के मरीजों के लिए जो खुदा इस वक्त दुख तकलीफ की हालत में खुदा उन्हें मुकम्मल शिफा अता कर। तू जो शाफी है, तू जो तबीब आज़म है, अपना जलाली और कुदरत वाला हाथ बढ़ाकर खुदा तू शिफाए कामिल अता कर ताकि खुदा ये तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदा इस तरह तेरी पाक हजूरी में मिन्नत और दरख्वास्त करते हैं तमाम बेरोजगारों के लिए, क्योंकि खुदा तो अपनी मिट्टी को खोलता है और खुदा इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है। कोई राज़िक खुदा है, रिज़्क़ कोई मुहैया करता है खुदा भाई। शाहिद बशीर के लिए खुदा जब वो जॉबलेस है, भाई नथानियल गुजार के लिए जब खुदा वो जॉब पर तो है लेकिन वो चाहते हैं कि उसमें और प्रोग्रेस करें, उसमें तरक्की करें। खानदान के लिए, उनकी बेटी के लिए खुदा जरिश के लिए दाना अपनी कामयाबी और कामरानी अता कर खुदा इस तरह तेरी पाक हजूर में मिन्नत और दरख्वास्त करते सिस्टर अनीला के लिए खुदा वो भी खुदा उनके लिए भी दरवाजे जो तूने खोले जॉब के उन्हें खुदा अच्छी और अच्छी खुदा प्रमोशन अता कर ताकि खुदा हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करती रहे और तेरे नाम पर धन्यवाद करे। आसमानी बाप में तेरी पाक हजूरी में मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ उनके बेटे के लिए, आयरन के लिए जो खुदा चल नहीं सकता, खुदा पंजों के बल चलता है, खुदा पूरे पाँव पर वजन देकर चले ताकि खुदा तेरी कुदरत उसमें काम करे, बोले और परफॉर्म तेरे नाम की जलाली खुदा इसका तमाम खानदानों के लिए रूहानी बरकत के लिए दुआ करते हैं। सिस्टर खुदा शमीम रजा के लिए जब खुदा अपने दिल से इजहार करते हैं कि वो तुझ में ग्रो करें, खुदा हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं वो तेरी खुदा खादमा बनकर गीत ज़बूर, और जब खुदा वो इन कामों में बड़ी एक्टिव है, कलाम को पढ़ने में खुदा और ज्यादा बरकत आकर सिस्टर शाहिदा सलामत के लिए उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। सिस्टर शकीला के लिए उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा से जो खुदा है तो जो बरकत का खुदा है,
खुदा इन खानदान को अपना कुदरत वाला जलाली हाथ बनाए रखना। सिस्टर शीबा जिशान के लिए उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। सिस्टर सुमेरा असगर के लिए उनके घराने के लिए, भाई असगर के लिए खुदा उनके एग्जाम के लिए खुदा मिन्नत करते हैं। खुदा तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा उन इंस्ट्रक्टर के दिलों को नरम कर ताकि खुदा उनसे तेरा बंदा कामयाब होकर तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को चला दें। बेटी सोनिया के लिए खुदा तेरी हुजूरी अरमान को, भाई आसफ कल्याण के लिए उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा इस तरह तेरे खादम पास चमन के लिए, बेटी फ्लाविया के लिए, उनके सारे घराने के लिए, कुंबे के लिए खुदा बरकत की दुआ करते हैं। खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा तेरी पाक हुजूरी में पास्टर खालिद जावेद के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा और ज्यादा खिदमत के दरवाजों को खोल। खुदा सिस्टर समर सराफीन के लिए, जब वो इस्लामाबाद में है खुदा वहाँ पर इंटरनेट की ना दस्तयाबी है, खुदा उनको उसे और उसके घराने की बरकत। भाई सूरत मसीह के लिए खुदा मिलकर दुआ करते हैं, जब वो उस वक्त लुधियाना गए हुए हैं खुदा, और उनके दोस्त के लिए, उनके वालिद के लिए भी जो कोविड-19 में खुदा है, तू ही खुदा शिफा देने की कुदरत अपने खुदा पाक लहू के वसीले से उनको शिफाए कामिल अता करता कि खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल दे। खुदा पास शौकत के लिए, सिस्टर एस्टर के लिए उनके घराने की बरकत की दुआ करते हैं। खुदा पास नवीद मलक के लिए उसके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। सिस्टर शिबा आमर के लिए, भाई आमर के बिजनेस के लिए, उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। आसमानी बाप इसी का तेरी पाक हजूरी में हम मिलकर दुआ खास करते हैं। पास्टर प्रेज खोकर के लिए, पास्टर प्रेज गिल के लिए, पास्टर प्रेज इकबाल के लिए, पास्टर इमानुअल सलीबी के लिए, पास्टर सैम जिनाश के लिए, उनके सारे घराने के लिए, उनके वालिद मोहतरम के लिए, खुदा सिस्टर फीबा के लिए, भाई नवीद के लिए, बच्चों के लिए बड़ी बरकत की दुआ करते हैं। खुदा उनकी बरकत खानदानों में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। खुदा तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। आसमानी वक्त मीक होकर के लिए उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और इस तरह सिस्टर खुदा तेरी पाक हजूरी में नसरीन जिया के लिए, भाई अब्रान के लिए खुदा बरकत की दुआ करते हैं। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट क्राइस्ट फॉर पाकिस्तान पर खुदा तेरे लोगों ने भेजी हैं, उन पर भी तेरी खुदा कुदरत को मांगते हैं। तू नामों से वाकिफ है, बल्कि खुदा तूने अपने हाथ हथेली पर हमारी सूरतों को खोद रखा है। खुदा का बड़ा जलाली हाथ बढ़ाकर बरकत दे क्योंकि खुदा तू बरकत देने की कुदरत रखता है। खुदा मैं इस तरह तेरी पाक हजूरी में पास्टर लतीफ के लिए, उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा अपना जलाली हाथ बढ़ाकर बरकत दे। भाई नईम गिल के लिए, भाई इजाज मसीह के लिए, खुदा बरकत की दुआ। भाई यासर के लिए, भाई अल्बर्ट फजल के लिए, और खुदा भी के अपने तमाम खादमों को अपनी हिफाजत का नाम में रखते वो खुदा ने कहा को मेरी आंख की पुतली है, जो उनको छूता है वो मुझे छूता है। खुदा उनकी हिफाजत करने का मानी करना। इस तरह खुदा मैं अपने घराने के लिए, खुदा जब तुमने मुझे ये खिदमत बख्शी है, मैं तेरी हुजूरी में आकर तेरी खिदमत कर सकूं। खुदा खिदमत के और दरवाजों को भी खोल। और जिस मुल्क में खुदा तूने हम सब को रखा है, चाहे वो स्वीडन है, चाहे वो बेल्जियम, चाहे वो हॉलैंड है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो पाकिस्तान है, खुदा जिस जिस शहर में तूने हमें रखा उसके लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा सबके लिए बरकत और बढ़ाने की दुआ करते हैं। इस तरह खुदा आरजू सिस्टर आरजू डैनियल के लिए खुदा तेरी पाक हुजूरी और तेरे हुजूर की बरकत की दुआ करते हैं। जितने भी आज हमारे साथ मौजूद हैं सबको बरकत दे। यीशु मसीह के कदूस और जलाली मुकद्दस नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन। आमीन आमीन। जैसे कि ज़बूर नवीस ज़बूर 66 में लिखता है कि खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। हमारा ईमान है कि ये सब दुआएं जो उसके हुजूर पेश की गई वो उनको अपने हुजूर बखूर की मानद कबूल करता है, क्योंकि उसके कलाम में मरकूम है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर मुझसे कुछ मांगते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। अजीज़ों, अब इबादत अपने इख्तिताम को पहुँचती है। पास्टर साहब अगर कोई ऐलान है तो आप वो कर दीजिए। जी शुक्रिया सिस्टर फीबे, गॉड ब्लेस यू। कल मासा जी, एक्सक्यूज मी,
दुआए रबानी नहीं हुई कलमाते बरकत। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी दुआए रवानी कहते हैं, मैं ऐलान के लिए पास्टर साहब को कह रही थी, अगर कोई ऐलान हो उसके बाद जी सिस्टर जी, कल हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर नवीन मलिक जो है वो बाइबल की आखिरी किताब मुकाशा की किताब की बाइबल स्टडी करवाते हैं। आप जरूर सबको भी दावत दें जितने हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि इस अखीर ज़माने की रोया को हम समझ सकें और उस पर अमल कर सकें और उसके लिए तैयार हो सकें। और एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक हम शुरू करेंगे, तू कहाँ पर होगा। और ये टॉपिक जो है वो हमें जगाता रहेगा ताकि हम उसकी अमल तक जानते हैं। शुक्रिया जी। शुक्रिया पास्टर जी। और अब हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। और मेरी दरख्वास्त है सिस्टर अनीला से कि अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो वो अपने माइक को अनम्यूट करें और दुआ रबानी में हमारी रहनुमाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में मुत्तफिक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू कर्ज हमारे हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन 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 आमीन। अब हम सब बहन भाई फतेहमंदी के नारे के साथ मीटिंग को बर्खास्त करेंगे। जी जय बरकाते मसीह कलमा। हर शय मसीह की। आमीन। जी सिस्टर जी बरकाते कलमा। हाँ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल पास्टर जी। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत हज़रत जमायत के साथ, हमारे खानदानों के साथ, बनी इसराइल कौम के साथ और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ जो ताज के मुंतजर हैं, उस उम्मीदवार हैं, हमेशा से हमेशा तक होते रहे। आमीन आमीन आमीन। खुदा हम सबको अपनी बरकत से मालामाल करे। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। जैमसी की, हर शैमसी की। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू सिस्टर फीबे, आपने बड़ी अच्छी मीटिंग को लीड किया। जय मसीह की, हर आपके शय साथ मसीह हो। की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। जी सिस्टर फीबे, आपने बहुत अच्छी मीटिंग प्रिजाइड की।